Welcome to our channel Digitizing Education. How are you all student? I hope you are preparing for your B.Ed second year exam. So again I have came with few MCQ question of paper 1 knowledge and curriculum. So I'd request you all, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and please also share with your friends, as very soon I'll be uploading the MCQs of all the subjects. So again I have come with the third series of knowledge and curriculum. Okay, I have already uploaded two videos MCQ question on paper 1 knowledge and curriculum book. So this one is the third series of MCQ question. Now let us start with our video. Pragmatism has a great sense of responsibility than naturalism with regard to moral training, because in this question it is asking us about pragmatism and naturalism. So it is asking us pragmatism has a great sense of responsibility than naturalism with regard to moral training. It is saying कि pragmatism में ज़्यादा sense of responsibility है as compared to naturalism. ठीक है, मॉरल ट्रेनिंग के रिगार्ड में. तो इसका रीज़न क्या है, क्यों है? ठीक है, विल सी द ऑप्शन. The free activity which pragmatic system of education entails does not mean license, rather it means a guided activity. Second option, they emphasize teaching of values. No, pragmatize में वो ज़्यादा emphasize teaching of values में नहीं करते. दे कंसिडर एजुकेशन बेसिकली अ सोशल प्रोसेस. वो एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस कंसिडर करते हैं. दे डू नॉट वांट द टीचर टू एब्डिकेट फ्रॉम द सीन. वो नहीं चाहते कि टीचर सीन से एब्डिकेट हो जाए, मतलब चली जाए. इट मीन्स कि टीचर बिल्कुल डिसअपियर हो जाए और स्टूडेंट का जो है वो एक्टिव रोल रहे. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन ए. The free activity which pragmatic system of education entails does not mean license, rather it means a guided activity. तो pragmatic system जो है वो ये चाहता है कि जो स्टूडेंट को हम एक फ्री एक्टिविटी जो कराएं, बट वो एक गाइडेड एक्टिविटी हो, मतलब टीचर का जो रोल हो वो गाइड करे स्टूडेंट को फॉर. तो जो एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ करने के लिए हमने दे दिया. वी हैव, देयर शुड बी गाइडेंस अपॉन द स्टूडेंट. सो दिस इज व्हाट pragmatism, that is the reason pragmatism has a greater sense of responsibility than naturalism. Let us see our second question. Pragmatisms are against. pragmatism किसके against है? The external examination, the specialist teacher, the breakdown of knowledge into separate subject और इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यू. सो प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अगेंस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट टीचर के अगेंस्ट भी नहीं है और स्पिरिचुअल वैल्यू के भी अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जो बेसिकली किस दो का कॉम्बिनेशन है. स्टूडेंट्स, आपने आइडियलिज्म पढ़ा होगा, नेचुरलिज्म पढ़ा होगा, तो इन दो का जो कॉम्बिनेशन है, जो बीच का जो ब्रिज दोनों को करता है, वो प्रैग्मेटिज्म है. सो here the correct answer is your breakdown of knowledge into separate subject. so pragmatist जो है वो इसके against है कि सब्जेक्ट को लाइक नॉलेज को ऐसे डिफरेंट सेपरेट सब्जेक्ट में ब्रेक डाउन करने के अगेंस्ट में है. naturalist conception of man is man's very essence of being is a spiritual value. It is spirit rather than animality that is most truly man. There exists in the nature of things a perfect pattern of each individual. Nature would have them children before they are men. तो naturalist जो है, naturalism में नेचर को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और मैन को बाद में दिया जाता है. वो कहते हैं कि नेचर से ही सब कुछ है, पहले नेचर आता है और जो चिल्ड्रन है, बच्चे, वो नेचर से ही, नेचर के बाद आते हैं. सो here the correct answer is your option number D, that is nature would have them children before they are men. So this is the correct option. Our fourth question is the aim of education according to existentialist is. तो जो
एग्जिस्टेंटियलिस्ट है, जो हम उस फिलॉसफी में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या है. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन. सो ऑप्शंस आर ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, adaptation to practical life, objective knowledge, a good understanding of the world outside. See, आपको जो एग्जिस्टेंटियलिस्ट है उनका जो एम ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग बताना है, तो एम ऑफ एजुकेशन उनका होता है ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमनिस्ट सेल्फ रियलाइजेशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Which is the most widely accepted method of education according to pragmatists? Pragmatists के according सबसे ज़्यादा education का कौन सा method है जो accepted हुआ है? So options are lecturing by the teacher, teacher आ रही है lecture दे रही है. Leaving the child free to learn, बच्चों को छोड़ दिया कि जो सीखने सीखो, मतलब इतना ज़्यादा उनको guidance नहीं दिया. Learning by doing, करके सीखना. And heuristic method यूज कर पढ़ाना. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज लर्निंग बाय डूइंग. जो प्रैग्मेटिज्म है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है करके सीखने में, लर्निंग बाय डूइंग. सी स्टूडेंट, इफ यू हैव नॉट रेड द चैप्टर एट द यूनिट, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू फर्स्ट गो थ्रू द यूनिट. अदरवाइज आपको ये MCQs करने से ऐसे समझ नहीं आएगा. हमको MCQs से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्लीज़ रीड द चैप्टर ट्वाइस और थ्राइस एंड देन सॉल्व द MCQ क्वेश्चन. एंड आपको ऑलमोस्ट इसमें से आप चेक करो कि आपको कितने आते हैं. चैप्टर पढ़ने के बाद यू कैन चेक कि आपको कितने क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करें एंड यू आर आंसरिंग इट करेक्ट. ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर वंस. इट्स माई रिक्वेस्ट. लाइक सिर्फ MCQs सॉल्व करने से नहीं होगा अगर हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा. If we know the concept, then we can solve many of the MCQs. Okay, so just go through the chapter and then try to solve these questions. And उस पे जज करो कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हो. और अगर उसमें से जो आपने इनकरेक्ट किए हैं, देखो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो. फॉर एग्जांपल, आपने प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके आंसर्स इनकरेक्ट आ रहे हैं. सो जस्ट रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म वंस अगेन. Okay, then try to solve again. So do it like this. Only don't go on accessing the MCQ questions. Okay, just first we need to clear the concept, then we can solve the MCQ. Which school of philosophy of education advocated project method of teaching? तो project method teaching इन चारों में से किसकी फ़िलॉसफी है कि हम प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करके पढ़ाया जाए. ओके, सो द ऑप्शन आर रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म. सो द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट प्रैग्मेटिज्म. बिकॉज अभी हमने एक क्वेश्चन जो ऊपर सॉल्व किया उसमें था कि प्रैग्मेटिज्म इज लर्निंग बाय डूइंग. देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के कर दिया. तो लर्निंग बाय डूइंग इज़ नथिंग, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट यूज़ करके काम कर लर्निंग बाय डूइंग. वी फर्स्ट डू द थिंग एंड देन वी लर्न फ्रॉम दैट. दिस इज़ व्हाट प्रैग्मेटिज्म फॉलोज. ओके, सो दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में एक ही चीज़ है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है. व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? आइडियलिज्म के हिसाब से एजुकेशन का गोल क्या है? ऑप्शन ए, परफेक्ट एडेप्शन टू द एनवायरनमेंट. Option B, realization of moral values. Option C, satisfaction of human wants. Option D, cultivation of dynamic adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situations. So जो आइडियलिज्म है, जो इसकी फ़िलॉसफी है, इसके अकॉर्डिंग जो गोल ऑफ एजुकेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज़ रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यू. दैट इज़ आवर ऑप्शन बी. जो आइडियलिज्म है वो इस पे फोकस करता है, मॉरल वैल्यू को रियलाइज करना है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट रीड द ऑप्शन थॉरोली क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं.
अ चाइल्ड लर्न थ्रू करिकुलम, एक चाइल्ड जो है वो करिकुलम के थ्रू लर्न करता है। ऑप्शन बी, सम टोटल ऑफ द एनुअल स्टडी, आप मतलब आपने पूरे साल में क्या पढ़ाई की, दैट इज सम, उसका पूरा टोटल इज योर करिकुलम। सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल, पूरे स्कूल के मिला के जो टोटल एक्टिविटीज है दैट इज करिकुलम। ऑप्शन डी, इंडिकेट्स द कोर्स to be taught by the teacher to the student throughout the year. So here the correct answer will be option D, indicates the course, वो course जो टीचर पूरे साल बच्चों को पढ़ाएगी। दैट कुड बी योर एकेडमिक, दैट कुड बी योर नॉन एकेडमिक, दैट कुड बी को करिकुलर एक्टिविटी। तो पूरी वो जो थ्रू आउट द ईयर बच्चों का जो भी हमने प्लान किया है, जो भी बच्चों को कराना है वो करिकुलम में ऑलरेडी प्लान है, इट इज़ देयर इन द करिकुलम। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो टीचिंग फिलॉसफी है एजुकेशन का वो किस चीज़ नीड पे बेस्ड है, कौन सी ऐसी ज़रूरत पे बेस्ड है। ऑल पीपल्स आर नॉट अलाइक, सारे बच्चे सेम नहीं होते, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्री, हर कंट्री में डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है। ऑप्शन सी, डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशनल फिलोसफी है, टीचिंग फिलोसफी है अलग अलग, वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आइडियलिज्म पढ़ा, नेचुरलिज्म पढ़ा, रियलिज्म पढ़ा, ठीक है। तो ऑल दीज जो भी फिलॉसफी है, कंस्ट्रक्टिविज्म एक अप्रोच है, तो ये सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे नेचुरलिज्म नेचर पे बेस्ड है, आइडियलिज्म आइडिया पे बेस्ड है, मॉरल वैल्यू पे बेस्ड है। तो अलग अलग जो फिलॉसफी है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एजुकेशन के एस्पेक्ट को बताती है। दैन द फोर्थ ऑप्शन इज डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग के जो अलग अलग तरीके हैं। सो जो ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सो हियर स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कि हर जो फिलॉसफी है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से एक्सप्रेस करती है ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Our next question is, which school maintained natural impulses of the child are of great importance and are good in themselves? जो कौन सा स्कूल इस चीज़ को मेंटेन करता है स्टूडेंट, ये नेचुरलिज्म का क्वेश्चन है। नेचुरल इम्पल्सेस ऑफ द चाइल्ड आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो चाइल्ड के अंदर जो नेचुरल इम्पल्सेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अच्छे हैं उनमें, गुड इन देमसेल्फ। तो ये जो दिया है ना ऑप्शंस में, ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरलिज्म दिया है, लाइक बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस, रोमांटिक नेचुरलिज्म। तो अब ये जो है कि जो चाइल्ड के जो नेचुरल इम्पल्सेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं, इम्पॉर्टेंस है उनका, तो ये कौन से नेचुरलिज्म में आता है। सो हियर स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन इज बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, सॉरी, सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली, करेक्ट आंसर इज पॉइंट ए। सो स्टूडेंट व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ, सी इससे आपको क्या पता चलता है कि नेचुरलिज्म जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरलिज्म है, यू मस्ट रीड दैट कि कौन से नेचुरलिज्म में क्या होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको उसका डेफिनेशन दे देगा एंड इट विल आस्क यू ये कौन सा नेचुरलिज्म में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेना कि कौन से नेचुरलिज्म में क्या क्या होता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which branch of philosophy deals with knowledge, its structure, method and validity? तो फिलॉसफी का कौन सा ब्रांच है जो डील करता है नॉलेज, उसका स्ट्रक्चर, उसका मेथड और वैलिडिटी से। सो ऑप्शंस आर लॉजिक, एस्थेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स। सो दीज आर आवर 4 ऑप्शन एंड द करेक्ट वन इज एपिस्टेमोलॉजी। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो हम आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और ये सब जो फिलॉसफी पढ़ रहे हैं वो इसी के अंदर आते हैं, एपिस्टेमोलॉजी के। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी. सो देर आर 4 ऑप्शन. इसमें से कौन सा फिलोसफी का नेचर नहीं है, नेचर नहीं है या फीचर नहीं है हम बोल सकते हैं. सो इट इज़ अ साइंस ऑफ नॉलेज, it is a collective ensemble of various viewpoints, it is a planned attempt on search for the truth, it is the totality of men's creative ideas. तो इसमें से हमें बताना है कि फिलॉसफी का नेचर कौन सा नहीं है, ये नहीं बताना कि कौन सा है. तो जो ऑप्शन ए है, इट इज़ अ साइंस ऑफ नॉलेज, ये फिलॉसफी का नेचर है. इट इज़ अ कलेक्टिव एनसेम्बल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट, हाँ सारे सबके अलग अलग व्यू पॉइंट के हिसाब से कलेक्टिव एनसेम्बल है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेचर ऑफ फिलोसफी. ओके, एंड सी इज इट इज़ अ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च ऑफ द ट्रूथ. एक प्लान्ड अटेम्प्ट है फॉर द सर्च ऑफ द ट्रूथ. And D is it is totality of man's creative idea. C, the correct option here is D. It is the totality of man's creative idea. So ये जो है D point, that is not the nature of philosophy. सब creative ideas के ऊपर totality ये nature of philosophy में नहीं है. Okay, so here the correct option is D. Let us move to the 13th question. Which school maintained self-expression with the accompanying cries of no interference, no restraints? तो which school maintain, कौन सा स्कूल मेंटेन करता है सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, with the accompanying cries of no interference, no restraint. कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें रुकावट या ऐसी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो Option A, extreme form of naturalism. Option B, most widely accepted form of naturalism. Option C, truest form of naturalism. Option D, most valid form of naturalism. So student, the correct option is extreme form of naturalism. वो इस चीज़ को maintain करता है, extreme form of naturalism. Now let us see the next question. Which school held the view God makes all things, man meddles with and they become evil? तो इसमें से कौन सा स्कूल है, कौन सी यहाँ पे फिलॉसफी है जो ये मानती है कि गॉड मेक्स ऑल थिंग गुड, भगवान ने हर चीज़ को अच्छा बनाया है, मैन उसके बीच में कुछ ऐसा करता है, गलत करता है तो वो एविल बन जाता है. एविल इज शैतान. ओके, शैतान को हम बोलते हैं एविल. सो हियर ऑप्शन आर Marxism, existentialism, naturalism, pragmatism. So the correct option is naturalism. Naturalism जो है वो नेचर को सब कुछ मानता है ना, तो वो बोलता है God makes all thing good. तो ये वाला जो व्यू है ये है आपका naturalism. विच इज़ नॉट naturalism एम ऑफ एजुकेशन. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें एम ऑफ एजुकेशन दी है अकॉर्डिंग टू naturalism, बट इसमें से कौन से नहीं है, चारों में से कौन सा एक है जो नहीं है. सो द ऑप्शंस आर एजुकेशन इज द नोशन ऑफ मैन इवोल्यूशन फ्रॉम लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ to equip the individual or the nation for the struggle for existence so as to ensure survival, to help the pupil to learn to be in harmony with and well adapted to their surrounding, to inculcate ethical and moral value in the pupil. So here the correct option is to inculcate ethical and moral value in the pupil. So ये जो है ये एम ऑफ एजुकेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू naturalism. जो मॉरल वैल्यू है वो आइडियलिज्म का एम है, वो naturalism का एम नहीं है. सो इसके लिए आपको एम ऑफ एजुकेशन पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू naturalism पॉइंट ऑफ व्यू. सो जो मॉरल वैल्यू है मतलब कि आइडियलिज्म है, मॉरल वैल्यू जो है वो आइडियलिज्म का व्यू था. सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Who was the supporter of naturalism in education? So इनमें से कौन है जो naturalism के सपोर्टर थे? ठीक है, ऑप्शन ए फ्रॉलबेल, ऑप्शन बी आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी रोजियो. तो द करेक्ट वन इज स्टूडेंट रोजियो. ये जो है ये naturalism के सपोर्टर थे.
Which educational activity is most desirable to the pragmatist? प्रैग्मेटिस्ट को इसमें से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटी है जो बहुत डिज़ायरेबल थी, जो बहुत अच्छी लगती थी, मतलब जो मानते थे? तो ऑप्शंस आर अप्रॉक्सीमेट द गोल विच एजुकेशनल साइंटिस्ट हैव सेट अप. Option B, result from the indiscrimination of the pupil in democratic theory. Option C, that is beneficial effect upon the future experiences of the pupil. The characteristics by spontaneous, active, continuously pleasurable and practical for the pupil. So, इसमें से जो मोस्ट डिज़ायरेबल एजुकेशनल एक्टिविटी थी प्रैग्मेटिस्ट को, दैट इज स्टूडेंट ऑप्शन ए. Approximate the goal which educational scientists have set up. So this one is your option A is the most desirable educational activity to the pragmatist. Now let us see the 18th question. On what depends the value of an educational experience in the eyes of the idealist? कह रहे हैं कि एक आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग, आइज ऑफ द आइडियलिस्ट मतलब उनके अकॉर्डिंग, आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग, ऑन वॉट डिपेंड द वैल्यूज़ ऑफ किस चीज़ पे एजुकेशनल एक्सपीरियंस की वैल्यू डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ऑप्शंस आर वेदर और नॉट द पीपल हैज़ बिन प्रॉपरली मोटिवेटेड, कि पीपल जो है, बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह मोटिवेटेड हुए हैं कि नहीं. वेदर और नॉट इट प्रिजर्व एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन, कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, उसको प्रिजर्व करके रखा है कि नहीं. द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाई पीपल डिज़ायर, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक जो बच्चों की डिज़ायर है उसको सेटिस्फाई किया है. द मैनर इन विच इट अफेक्ट द फ्यूचर एक्सपीरियंस, किस तरीके से इसने फ्यूचर एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया है. सो स्टूडेंट, हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेदर और नॉट इट प्रिजर्व एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन. This is the correct option. Our next question is, naturalism expands on the base of realism, but they add the idea that people and their lives are deeply affected by dash. तो naturalism रियलिज्म के बेस पे एक्सपैंड हुआ है, ठीक है, बट उनका एक आइडिया है कि पीपल एंड देयर लाइफ आर डीपली अफेक्टेड बाय व्हाट, मतलब जो लोग हैं उनकी लाइफ किस चीज़ से बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड होती है. तो ऑप्शन आर नेचुरल फोर्सेस, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट, हियर द करेक्ट नेचुरलिज्म हमें पता है कि नेचर से रिलेटेड है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. नेचुरल फोर्सेस, ऑफ कोर्स, एनवायरनमेंट भी नेचर का पार्ट है, हेरिडिटी भी नेचर का पार्ट है. सो the correct option is all of the above. Now let us see our next question, 20th question. This is an example of a philosopher that believed in pragmatism. तो बोल रहे हैं कि इसमें दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिलोसोफर, मतलब 4 फिलोसोफर के नाम दिए हैं, उसमें से कौन सा फिलोसोफर है जो प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करता था. ठीक है, तो ऑप्शंस आर ऑगस्ट कॉम्ट, विलियम जेम्स, सोक्रेट्स, जॉन लॉक. सो स्टूडेंट, जो प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करता था दैट इज विलियम जेम्स. सो विलियम जेम्स इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो टुडे वी हैव डन 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम, और इसमें मोस्टली जितने क्वेश्चन थे ना वो आपके यूनिट 2 से रिलेटेड थे, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इन सब के ऊपर. सो प्लीज़ go through the chapter, go through all the unit and just try to solve the MCQ. अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग होता है आपका, then go to that concept, एक बार पढ़ो, then again try to solve. ओके, इतना टफ नहीं है, आप कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ फिलोसोफर्स के नाम वगैरह पता होना चाहिए, स्पेशली इन दिस यूनिट 2 पार्ट. ओके, जैसे प्रैग्मेटिज्म के फिलोसोफर कौन थे, फॉलोअर कौन थे, आइडियलिज्म के कौन थे. सो यू हैव टू नो द नेम्स ऑल्सो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट, कीप लाइक ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखो कि फिलोसोफर के नाम वगैरह पता होने चाहिए. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट मैसेज मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी
surely helping you. I'll be trying to solve your doubt. I'll try to make videos on that if you have any doubt. And all the best. Take care. Prepare well for your exam. For today, bye bye. I'll be coming with one more MCQ series, fourth series of knowledge and curriculum. Then after that fourth series, we'll start with the assessment for learning our paper 2 of B.Ed second year. Till then, goodbye and take care and all the best.